Hi, I am Bhavani Shankar, Assistant Professor of Chemistry, Sadiq Fakir Government Boys Degree College, Mitri, Tharparkar. Today we have to discuss the most important topic regarding benzene, the chemical reactions of benzene. As you know, benzene can react by principal method. I mean, the principal method is that in which benzene, after the reactivity, it can maintain its aromatic character. So that's why we have to refer it as a principal reaction, because we have another type of reaction where when benzene is reacting by addition. So after addition, we have a product. That product would be no more aromatic, means it will be converted into aliphatic system. So as you know, we have the reaction of benzene and how benzene can react in the earlier part, as we already known that benzene can react by electrophilic substitution reaction. But now we have a topic which we have to discuss today is the electrophilic substitution reaction of benzene. In that benzene it is reacting, but now benzene is reacting after that electrophilic part. We have a group, and that group it is very important now rest of the substitution. So what I want to say, the replacement of hydrogen by the electrophile, that we have to refer it as electrophilic substitution. But after that, the first replacement, we have an introduction of group G. Now the group G, it may contain different groups. So now this G is the orienter or director of the next or other replacements. As you know, we have the position, the description of position. So description of position after the replacement of hydrogen by any group, then the position where group G is present. With respect to that, the adjacent position like 2 and 6, we have to refer it as ortho position, and position 3 and 5, they are to be referred as beta position, and opposite to 1 it is called para position. So these positions are present for the next replacement. I mean the second, third or even more than that replacements. So how the next group it is to be introduced? Now it all depends on the G. So G we can say is the orienter or the director for the second substitution. Now I can say G is further divided or to be categorized into three types, and those three types are written here. That it may be orthopara director, and that we have to refer it as activating groups, and those activating groups are alkyls, hydroxyl, alkoxy, amine, or the amine, acid amine, but the nitrogen part it should be the part of attachment. And in beta directors, we have to say beta directors are deactivating group, and those may include nitro group, sulfonic acid group, and we have all carbonyls. It may be aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, rest of those. And we have third category. Third category, we have to say that is orthopara director and deactivating groups, and that only we have the halogen atom. And when your group G means the monosubstituted part is halogen, then you have a such type of activity. We have to say deactivating group takes place. So now we have first follow to the orthopara director and activating, and how this mechanism it is carried out. तो अब ये मैकेनिज्म जो होता है ऑर्गेनिक का, सोल ऑफ द सिस्टम होता है. तो इस सोल ऑफ द सिस्टम को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर में से हमने लिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन पार्ट जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड है विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन. तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये दो लोन पेयर रखता है. तो ये दो लोन पेयर जब रखेगा तो हम इसको ये कह सकते हैं कि लोन पेयर जब एटम
आपका कैरी करे और वो डायरेक्ट अटैच हो विद बेंजीन, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर भी इस तरह डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है ये डाइवर्टेड होता है, डायरेक्टेड होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो यहाँ कार्बन जो पाई सिस्टम कैरी करता है, तो ये पाई सिस्टम वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये डाइवर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, रिपेल्ड हो जाएंगे, और इस तरह ये जो पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो हो जाएंगे मोर एंड लेस। तो जहां एरो का हेड है वो इंडिकेट करता है कि वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर डेंसर हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है एस नेगेटिव हम शो करते हैं, मींस दैट कार्बन कंटेंट मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द पाई सिस्टम। तो इस तरह ये सारा सिस्टम जो है बेंजीन के रिंग के अंदर वो इस तरह शिफ्ट हो जाएगा कि ये पोजीशंस जो हाईलाइटेड हैं थ्रू दीज एरोस वी हैव दीज टू पोजीशन एंड दिस इज थर्ड पोजीशन, और ये तीनों पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जो डेफिनेटली प्रोड्यूस किया हुआ है बाय द कैटलिस्ट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो डाइवर्ट होगा, अट्रैक्टेड होगा इन तीन पोजीशंस पे। ये तीन पोजीशन कहलाती हैं आर्थोपेरा पोजीशन। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या चॉइस है कि वो अचीव करेगा आइदर आर्थो आर पेरा, और अब ये उस रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका ये आर्थोपेरा और आर्थोपेरा पोजीशन 2, 4, 6 पोजीशन है वो एक साथ एक ही कंपाउंड के अंदर मिल जाते हैं, या उसमें से आर्थोपेरा प्रोडक्ट मेजर और उसमें माइनर प्रोडक्ट की हमें प्रोपोर्शनलिटी भी मिल सकती है। तो इसके बाद जब ये आपका मैकेनिज्म का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेट में, तो इन द एंड द प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किया गया है, और जो रिप्लेस किया है उसने वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, और वो पोजीशन जो अचीव की है वो है आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये इस तरह ये ग्रुप या इनमें से कोई ग्रुप अगर ऑलरेडी अटैच है मोनोसब्स्टिट्यूटेड, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह आर्थो या पैरा पोजीशन लेगा। अब आ जाते हैं मेटा डायरेक्टर्स पे। उस मेटा डायरेक्टर्स को हम देखें पूरे ग्रुप से, तो उसमें आपका नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और उसके बाद कार्बोनाइड्स सारे जो होते हैं तो उनके कार्बन अगर बेंजीन के साथ लिंक्ड है, तो मैंने उसमें से ये एल्डिहाइड का लिया है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो आपका एल्डिहाइड रखता है, तो इस कार्बोनाइल की वजह से जो कार्बन मौजूद है, या आप नाइट्रो लीजिए या सल्फोनिक एसिड लीजिए, तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो है वो आपका आइदर कार्बन है, और किसी केस में ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, और किसी केस में ये सल्फर भी हो सकता है, और उसके साथ जब ऑक्सीजन लिंक्ड है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो पार्शियल कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं वो हो जाएंगे बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पोलरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आपके वो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट होंगे मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लेस टुवर्ड्स कार्बन, तो ये फोर्स बन जाएंगे। और ये फोर्स बनने से ही क्या होगा कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ये डायरेक्टेड हो जाएंगे बिटवीन द कार्बन ऑफ द बेंजीन एंड द कार्बन ऑफ द एनी ग्रुप। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो पाई सिस्टम के हैं इसकी शिफ्टिंग होगी, डाइवर्ट हो जाएंगे, और इस तरह ये पोल्स जो क्रिएट हो जाएंगे वो इस तरह होंगे, जहाँ पे इस एरो का हेड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसर पार्ट होगा, और जहाँ टेल है वो इलेक्ट्रॉन जो है एफिशिएंट पार्ट होगा, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं प्लस और माइनस से। तो अब यहाँ पे इस हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को, ये इसकी जो ट्रांजिशन पिक्चर आती है उस ट्रांजिशन पिक्चर में हम देखें तो ये मेटा पोजीशंस जो हैं वो आइडियल है फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। और ओवरऑल अगर हम बेंजीन की रिंग को देखें तो आउट ऑफ 5 कार्बन्स, अब इस 5 कार्बन्स में से 3 कार्बन्स जो हैं वो जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो ओवरऑल बेंजीन की रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो शो करें डेफिशिएंसी, और इस तरह ये आपका बेंजीन की रिंग जो होगी वो लेस एक्टिव शो हो रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए आइदर टू दिस पोजीशन थर्ड और फाइव बोथ आर मेटा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस 3 या 5 पोजीशन जिसको मेटा पोजीशन कहते हैं, यही जगह होती है टू अटैक एंड टू रिप्लेस दी हाइड्रोजन। तो इस तरह ये आपका जो मेटा डायरेक्टर जो ग्रुप है वो इस तरह जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, इसकी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करेगा। और थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं आर्दो पैरा डायरेक्टर, जो पहले भी था लेकिन पहले एक्टिवेटिंग थे अब डीएक्टिवेटिंग है, और उसमें आता है हैलोजन। अब हैलोजन की पोजीशन ये है कि हैलोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है, और हैलोजन अब डायरेक्ट कार्बन आफ्टर बेंजीन के साथ अटैच है। तो जब ये कार्बन आफ्टर बेंजीन के साथ अटैच है तो ये कैपेबल है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स लोन पेयर। और जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो इस तरह ये पोजीशंस जो एक्टिवेट हो जाएंगी वो एक्टिवेट पोजीशन हो जाएंगी आर्दो और पैरा पोजीशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। और इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक आइदर आर्दो और पैरा पोजीशन। और उसके बाद जब आर्दो पैरा पे जब रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रोफाइल उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब ये डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गया? अब डीएक्टिवेटिंग का यहाँ पे इस तरह है कि आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोफाइल, अब जो हैलोजन लगा है यहाँ एज ए जो प्रीवियसली मोनो सब्स्टिट्यूटेड था वो अभी भी ग्रुप है, तो ओवरऑल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ये जो आपका एरो जो शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है दी इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इन्फ्लुएंस दैट्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन्फ्लुएंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका डायरेक्टेड होगा, डाइवर्टेड होगा टुवर्ड्स हैलोजन। दैट्स व्हाई दैट डाइवर्जन कैन मेक benzene ring as what less effective or reactive. That's why we have to say it is called deactivating group. That's all about, and this can help to what rest of the products when you want to produce from benzene, if you want to replace more than one hydrogen. That's all about. Thanks.